Today we will going to discuss about types of osmosis, plasmolysis and deplasmolysis, active and passive transport, turgidity and flaccidity, and types of solution. Discuss about the types of osmosis. So here osmosis. As we know, so let's give us a little summary. Osmosis is a process in which water molecules will going to move from higher concentration to lower concentration with the help of a semi-permeable membrane. For example, when the water will going to move from its higher concentration to its lower concentration, there always present a membrane between them, and that membrane will be known as the semi-permeable membrane. So this will be a higher concentration, this will be a lower concentration, and this is a semi-permeable membrane. So water will going to move from its higher concentration to its lower concentration, and there will be a semi-permeable membrane in present between of two cells. So this is a simple summary of osmosis. Now we are going to see the types of osmosis. So types of osmosis. Osmosis will be of two types of osmosis. Osmosis will be of two types. One will be the endosmosis and second will be the exosmosis. See, endosmosis. Here there will be a two cell. As we have discussed, in the process of osmosis, water will going to move from its higher concentration to its lower concentration. For example, if the water present outside the cell is of higher concentration and the water which is present inside the cell, it is of lower concentration. So as we know, the water will going to move from its higher concentration to its lower concentration. So what will going to happen to next? Water will going to move inside. In this process, what will going to happen? The water will be moving inside the cell. So endosmosis is a process in which water will move inside the cell, because the outer water is having higher concentration in comparison to the water which is present inside. In the next X, as we know, the things which goes out, as for example, if you will be going out of the school, what will you going to do? You will become the ex student of the school. Same when the water will be moving out. So in this condition, what will going to happen? Suppose this is the water in the beaker. Suppose the water present inside the cell will going to have the higher concentration, and the water present outside the cell will going to have the lower concentration. And in this process, what will going to happen? The water which is present inside the cell will going to move out of the cell. So in this process, what will going to happen? In this process, you will going to have the exosmosis. That means water will move outside the cell. Water will going to move outside the cell. So this is the following process. Simple, you have to learn. The process of osmosis, water will going to move from higher to lower. So endosmosis, the outer surface will going to have higher concentration of water. Do remember, it will be a higher concentration of water. That means water will be 100% pure state here. No, nothing will be mixed in that. And the water present over here has a lower concentration. That means water is mixed with salt, minerals and everything. So water will have the lower concentration. The water will move inside, and here the water is purest form present over here,
and after that the water will going to move from the higher concentration to lower concentration. So this is the simple process of osmosis. Next we will going to move to our second area. Next we will going to discuss about the osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर रिक्वायर्ड, एक ऐसा प्रेशर है विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द नेट मूवमेंट ऑफ प्योर वाटर इनटू द सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये मान लो सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर वाटर के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्स फॉर्म में है, और हम लोग को पता है कि बाहर जो है वाटर वो क्या है, आप लोगों का दी प्योरेस्ट वाटर है। अब होता क्या है कि एक हद तक वाटर क्या होगा, पूरी तरह से मूव करेगा, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये सेल मान लो पूरी तरह से वाटर से भर चुका है, अब इसमें और वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दैट मीन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का, वो क्या करता है, प्रेशर डेवलप करता है। ये प्रेशर के थ्रू क्या होता है, और प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के पास नहीं जा पाता है, ताकि क्या ना हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या ना हो, इंक्रीज ना हो। तो ये बेसिकली होता है क्या, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप इट इज़ क्लियर। सो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं। फिर से बता देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिफाइन एज द प्रेशर, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक ऐसा प्रेशर इंसर्ट होना है जिससे कि जो प्योर वाटर है वो अंदर क्या ना हो पाए, बाहर ना जा मतलब अंदर एंटर ना कर पाए, क्योंकि ये सेल जो है वो पूरी तरह से वाटर से भर चुका है। अब इसमें वाटर के और एंट्री करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या होता है, ये एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो वाटर होता है वो क्या नहीं हो पाता है, अंदर और ज़्यादा एंटर नहीं हो पाता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस जो टॉपिक है इसमें हम लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, फ्लैसिडिटी, टर्जिडिटी, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग को टोनिसिटी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, बेसिकली टोनिसिटी होता क्या है, तो डेफिनेशन ही बोलता है, टेंशन डेवलप ऑन अ सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। सपोज एक बीकर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, हम तीन चीज़ ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट, और उससे मिलके बनता है सॉल्यूशन, जैसे कि हम लोग को सब पता है। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्वेंट, यहाँ पर कोई भी जो लिक्विड रहेगा वो हम लोग का सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्यूट जो रहता है वो हम लोग का वाटर भी हो सकता है, वो हम लोग का लिक्विड भी हो सकता है, वो हम लोग के सॉलिड भी हो सकते हैं, और वो बेसिकली गैस भी हो सकते हैं, कुछ भी। यानी किसी भी लिक्विड में अगर हम लोग सॉलिड मिला दें, गैस मिला दें, या वाटर मिला दें, कोई भी चीज़ मिला दें, तो बेसिकली क्या हो जाता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर वाटर और गैस को नहीं देते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि टेंशन डेवलप ऑन अ सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होना है। हो सकता है कि सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन जो लेते हैं, मान लो कि हम लोग क्या ले रहे हैं, पहला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक ले लिए। दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं हाइपरटोनिक, और तीसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं आइसोटोनिक। अब किस बेसिस पे देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और सॉल्यूशन के बेसिस पे। अगर जो आप लोगों का सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी
सॉल्वेंट की क्वांटिटी से कम हो। फॉर एग्जांपल, इफ सॉल्यूट विल बी लेस, सॉल्वेंट विल बी मोर, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यानी जो सॉल्यूशन रहेगा वो थोड़ा सा थिन टाइप का रहेगा, थिक नहीं रहेगा, थिन रहेगा। यानी जो भी सॉल्यूशन बनने वाला होगा वो ज़्यादा ही लिक्विडिटी फॉर्म में रहेगा, सॉलिडिटी फॉर्म में नहीं रहेगा। हाइपर में क्या होता है, यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट यहाँ पर लेस होगा, सॉल्यूट यहाँ पर मोर होगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो थिक सॉल्यूशन बनेगा, यानी गाढ़ा घोल हिंदी में बोल सकते हैं ऐसा, कि जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो बहुत ही थिक होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शरबत वगैरह देखा होगा, जो बॉटल्स वगैरह मार्केट में बिकती हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे रहती है। और नॉर्मल जो हम लोग नींबू पानी वगैरह पीते हैं वो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है, वाटर ज़्यादा रहता है और बाकी जो क्वांटिटी क्या रहती है वहाँ पर कम रहती है। आइसोटोनिक में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी सॉल्यूट प्लस जो सॉल्वेंट है दोनों की क्वांटिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो कैसा होता है, सॉल्यूशन ना ही थिक ना ही थिन, वो क्या रहेगा आप लोगों का इक्वल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो ये हैं आपके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। अब हम क्या करते हैं, तीनों सॉल्यूशन में एक लाइव सेल को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग को प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी सारी चीज़ एक साथ देखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग को पता है कि जो बाहर का वाटर होगा, यानी जो बाहर वाटर होगा, जैसे सॉल्वेंट है ना, यहाँ पर हाइपोटोनिक में क्या होता है, सॉल्वेंट मोर सॉल्यूट लेस, तो वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर इंसर्ट करेगा, यानी एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर, एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, जनरली सेल जो होगा वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, और यही प्रोसेस हम लोग कहलाता है टर्जिडिटी का प्रोसेस। टर्जिडिटी यानी सेल का अपने साइज़ में बड़ा होना क्या कहलाएगा आप लोगों का, द प्रोसेस ऑफ टर्जिडिटी। और या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा सेल है, डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी क्योंकि सेल के अंदर का प्लाज्मा इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ द इंसर्ट मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। सेकेंड वाले में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे कि हम लोग को पता है कि सॉल्यूट जो रहता है वो मोर होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लेस होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा हम लोग का, एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस, एक्सोस्मोसिस होगा, यानी क्या हो जाएगा, सेल के अंदर के सारे मटेरियल क्या हो जाते हैं बाहर। तो सेल के अंदर के सारे मटेरियल बाहर जाते हैं, जो सेल होता है वो श्रिंक के छोटा हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, फ्लैसिडिटी। और या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेल कैसा है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, क्योंकि अंदर का प्लाज्मा भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जैसे ही सेल से छोटा साइज़ में कम होगा तो उसके अंदर का प्लाज्मा भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सेल के साइज़ में छोटा होना या पिचक जाना फ्लैसिडिटी कहलाता है, और प्लाज्मा का छोटा होना या सिकुड़ जाना क्या कहलाता है आप लोगों का, प्लाज्मोलाइसिस। और नेक्स्ट हम लोग को पता ही है कि यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है आप लोगों का, इक्वल है। तो देयर विल बी नो चेंज नाइदर एक्सोस्मोसिस नाइदर एंडोस्मोसिस। तो आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू मूव टू द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मूव टू एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव जैसे नाम से पता चल रहा है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। तो एक ऐसा मूवमेंट या एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होती है, क्या कहलाएगा आप लोगों का, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स हियर व्हाट विल गोइंग टू हैपन, एनर्जी विल बी यूटिलाइज। और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर एनर्जी हमारी यूज़ नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसफर बेसिकली कब होता है, जब कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि चीज़ों को लो से हाई में जाना पड़े। जैसे आप लोग भी ठीक है, तो ये जैसे मान लो, जो आप लोग भी कभी ड्राइव करते तो क्या होता है, अगर मान लो कि ये स्टीप साइड है तो ये लोअर एरिया है, इससे हम लोग को क्या करना है,
हाई एरिया पे जाना है तो क्या होता है, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। तब कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि जब कोई चीज़ें अपने लो एरिया से अपने हाई एरिया साइड मूव करते हैं तो वहाँ पर हाई एनर्जी का क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, प्लांट के साथ भी ऐसे होता है, लोअर टू हायर। तो यहाँ पर प्लांट को क्या होते हैं, बहुत सारे एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, इस टाइप का ट्रांसपोर्ट जहाँ पर चीज़ें लो टू हाई मूव करती हैं, क्या कहलाएंगी आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव का क्या है, पैसिव जो नॉर्मली क्या होता है, हायर टू लोअर। अब हायर टू लोअर यानी कोई चीज़ें जब हायर से लोअर एरिया पे जाती हैं तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये आराम से चली जाती हैं। तो इस टाइप का क्या कहलाता है आप लोगों का, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये चीज़ें कब होती हैं, जब कोई भी चीज़ें क्या होती है आप लोगों के हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन के साथ क्या होती है, मूव करती है। तो ये है हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. So in the next video we will going to discuss about various experiment performed in the process of all the things. Thank you.